Hello children, this is Praveen Khan Shukla from Christchurch Convent Higher Secondary School, Gadawara, and I welcome you in our digital classes. This video is for class 11th subject Business Studies. First, I would like to say congratulations to all of you that you have passed your 10th class and this is your great success. So students, in commerce stream, there are three major subjects and they are accountancy, business economics, and the third one, that is business studies. Okay, so this is your subject, that is business studies, and in this part of commerce section, we will try to understand about the management of business. Okay, how we manage the businesses. Okay, so now as a commerce student means आप इतना तो समझ सकते हैं या जानते होंगे कि कॉमर्स मीन्स व्यवसाय. सो व्यवसाय से संबंधित या उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं या उससे संबंधित जो मैनेजमेंट है वो सभी कुछ आपको यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट में मिलेगा. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, बिकॉज when you go for the further studies of management like MBA and BBA, you have to study the same point which we will discuss here. Okay, the same topics you will be getting there. Okay, that is why this is important for you. Okay, so here we will discuss about our first unit, that is nature and purpose of business. It means कि बिजनेस कैसा होता है, उसका नेचर क्या है. ओके, पर्पस क्या है, उद्देश्य है ना. सो फर्स्ट यूनिट में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, अलग अलग पार्ट लाइक बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस रिस्क भी होती हैं. So this is all about your first unit. Okay, so let's have the next topic. So in this unit, nature and purpose of business, first we'll try to know about the activities of human beings. Okay, so it is observed that people do many things. They engage themselves in different types of activities. Okay, and the reason behind it that they have to fulfill their needs and wants. Okay, so these activities are basically done for the income, and the income helps to satisfy the basic needs such as food, clothing and shelters. Means हम अपनी दैनिक दिनचर्या की जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं इनको अरेंज करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं. ठीक है, तो ऐसी कई कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम करते हैं. तो बेसिकली बिजनेस पर्पस से इन एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में बांटा गया है, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. ओके, economic activity and non-economic activity. So first one, that is economic activity. Definition is there, that is all those activities which are done to earn wealth and which are related with production, exchange, distribution and consumption of goods and services are called economic activity. Examples are a businessman, a trader, a manufacturer, a doctor and a लॉयर. ओके, मीन्स वो सभी एक्टिविटीज जिनका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य पैसा कमाना होता है, टू अर्न वेल्थ, मनी. ओके, और जो कि जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्शन से, एक्सचेंज से, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उन्हें एक्सचेंज करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना या उन्हें कंजम्पशन करना, ये सभी एक्टिविटीज, और इनका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य होता है टू अर्न वेल्थ। ये एक्टिविटीज कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल्स, बिजनेसमैन है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है। सो they all perform the activities which help them to manage their livelihood. Okay, that is the economic activity. The another one activity is non-economic activity. The definition is here. Now let's see. All those human activities which are not done to earn profit, whose motive is to fulfill the social obligations and needs. ठीक है, just opposite to the economic activity. वहाँ हम कह रहे थे कि मेन मोटिव जो है वो टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी होता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वे सभी एक्टिविटीज जिनका मोटिव पैसा कमाना या प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उनका उद्देश्य या उनका मोटिव समाज या सोशल की ज़रूरत को पूरा करना होता है। ठीक है, मीन्स दे वर्क विदाउट एनी पर्सनल इंटेंशन और पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, एग्जाम्पल यदि हम देखें तो माँ जो हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, और वो कोई उसका उनका पर्पस या उनका कोई उद्देश्य किसी प्रकार से भी टू अर्न प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट द लव एंड द अट्रैक्शन एंड द रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखें तो पंडित जी, पुजारी जो हैं पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, टेम्पल में। ठीक है, वो भी उनकी भक्ति भावना के तहत करते हैं। तो ऑल दीज एक्टिविटीज which are not related with the view of earning money are called non-economic activities. Okay, so I think you got these activities, economic and non-economic. Okay, now types of economic activities. Okay, मीन्स अब हम आगे लेके चल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर डन टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी। ओके, सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दैट मेजरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. Okay, business, profession and employment. Okay, so all these 3 activities we can easily understand that all 3 activities are done taking a view of earning money. Okay, बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस यदि हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम उससे पैसा कमाएं। हम किसी प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन में भी हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम पैसा कमाएं, या हम कहीं जॉब करेंगे, हम कहीं नौकरी करेंगे तो भी हमारी एक फिक्स्ड सैलरी होगी। ठीक है, इसलिए हम इन सभी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं, क्योंकि इनका पर्पस अर्निंग मनी होता है। ठीक, अब बिजनेस के सब हेडिंग में आप देखें तो क्या क्या आ सकता है। ट्रेडिंग कंसर्न, बिजनेस व्यापार से संबंधित चीज़ें, इंडस्ट्रीज होना, बैंकिंग सेक्टर में होना, ट्रांसपोर्टेशन, और भी इसमें कई इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ये सभी बिजनेस के टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के लिए यू मस्ट बी वेल क्वालिफाइड and you have to follow some rules and regulations which are given by the board or the authorities which provide a professional degree. Okay,
सो वो ये प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ता है, आपको एक डिफरेंट एजुकेशन लेनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है, और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मतलब आप कहीं जॉब करते हैं, आप एक कहीं पे किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आप क्लर्क हैं, ठीक है, सेल्समैन, वर्कर्स, सो ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ठीक है। सो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों है, क्योंकि ये सभी दे ऑल आर परफॉर्म एंड देयर मोटिव इज टू अर्न मनी, ओके। Now the next, that is concept of business, okay. Now we are taking one of the economic activities, okay. इसके पहले जो हमने स्लाइड देखी, स्लाइड में हमने देखा था कि बिजनेस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ economic activities, okay. So now let's have the meaning. The term business means the state of being busy, means it is as simple as its name, okay. हम बोलते हैं ना कि बिजी, बिजी वर्ड से ही बना है बिजीनेस। बिजी मतलब किसी भी काम में व्यस्त होना, ठीक है। तो बस उस व्यस्तता की जो अवस्था है, मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, इज कॉल्ड बिजनेस, ओके। आप कहीं व्यस्त हैं, किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जिससे आप अपनी जीविका चला रहे हैं, जिससे आप अपना परिवार चला रहे हैं, जिससे आप कमा रहे हैं, वो जो काम है वो आपका बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस के अंतर्गत या उससे रिलेटेड प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन और सेल हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, ओके। सो ये बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हो सकते हैं, फील्ड्स हो सकती हैं, ठीक। अब कई दूसरे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने हिसाब से बिजनेस को डिफाइन किया है। सो टू डेफिनेशंस आई हैव गिवन हियर, एंड मे बी इन योर बुक देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर, but I have given here only two definition, and from exam point of view I would like to say that these definitions are important, okay. Means if you write the definitions of any management expert, means it looks or it impress the examiner, okay. So first that is Professor L.H. Haney. According to him, business may be defined as human activity directed towards providing and acquiring wealth through buying and selling of goods, okay. मतलब उनके हिसाब से बिजनेस जो है वो पैसा कमाना है, ठीक है, जिसमें बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स मतलब इंक्लूड होता है, ठीक। एक और है, और भी आपकी बुक्स में है, आप उनको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। सो अभी हम इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। इसके बाद जो आपके इसी यूनिट के अगले जो पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छे से देखिए, समझिए, ओके, एंड try to make the notes of these, okay. And what you have to write in your notes, timely I will tell you, and you have to make the notes also, okay. Thanks for watching. We will meet in our next video. Thank you.